سورج کے طلوع ہونے سے لے کر ڈوبنے تک وہ کہتا ہے کہ خدا کا نام تعریف کے لائق ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے کے وقت سے، ہاللویہ، اور سورج کے غروب ہونے تک خدا کا نام تعریف کے لائق ہے۔ تو خدا کا نام چٹان ہے، یہ ایک چٹان ہے۔ خدا کا نام یہ ایک پناہ گاہ ہے۔ خدا کا نام ایک مضبوط مینار ہے۔ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک خدا کا نام تعریف کے لائق ہے۔ لہٰذا آج خدا کے لوگوں، آپ کو دعا کے ساتھ دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ اپنے دن کو دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنے دن کا آغاز دعا سے بھرے منہ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ آپ کے منہ سے ہمیشہ ایک آواز نکلنی چاہیے، خدا کی تعریف ہو۔ جیسا کہ آپ رات کی گھڑی سے باہر آتے ہیں اور آپ صبح میں آتے ہیں، خدا کی تعریف ہو۔ ارے لوگوں، آپ کو صبح کا آغاز دعا کی طاقت کے ساتھ صبح کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ رات میں شامل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ آپ رات میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ نئے دن میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کو نئے دن میں طاقت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے۔ آپ صرف کھانا تلاش کرنے کے لیے نہیں اٹھتے۔ آپ دن میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے میری کافی کی ضرورت ہے۔ نہیں، آپ کو اپنے دن کا شروع، آپ کو اپنے دن کا آغاز کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے دن کو دعا کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ ایوب کی کتاب میں خدا نے ایوب سے ایک سوال پوچھنا شروع کیا۔ جب ایوب اٹھ رہا تھا اور اس نے اپنی زندگی کے مختلف واقعات کے بارے میں خدا سے سوال کرنا شروع کیا۔ میرا مطلب ہے کہ خدا نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے دن کو حکم دیا ہے؟ کیا تو نے اپنی صبح کے وقت کا شروع صحیح سے کیا ہے؟ یعنی خدا نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنی صبح کو حکم دیا ہے؟ کیا تو نے اپنی صبح کا وقت شروع کرنے کی ترتیب دی ہے جب سے وقت شروع ہوا ہے؟ اور بائبل کہتی ہے کہ ایوب خدا سے پوچھنے لگا کہ میں اپنی صبح کیسے ترتیب دوں گا؟ میں اپنی صبح کو کیا کہوں؟ خدا نے کہا کہ آپ کو اپنا منہ کھولنا ہے اور آپ کو اپنی صبح کو حکم دینا ہے۔ آپ کی صبح کچھ کہنے والی ہے۔ آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی صبح، خدا کی تعریف ہو، آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گی، آپ کی گرفت میں۔ اگر آپ نے صبح کو حکم نہیں دیا ہے، اگر آپ نے اپنے دن کے شروع سے کچھ نہیں کہا ہے، اگر آپ نے اپنے دن کے لیے کچھ نہیں کہا، اگر آپ نے اپنے دن کے لیے کچھ نہیں کہا، آپ کا دن آپ پر قابو پانے لگے گا۔ کیا کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو اس نے پوچھا کہ کیا تو نے صبح کو حکم دیا ہے؟ کیا تو نے اپنے دن کو حکم دیا ہے جب سے وقت شروع ہوا؟ اور اس لیے ایوب کو اپنی مصیبت کی جگہ سے اٹھنا پڑا۔ خدا کی تعریف ہو، کیونکہ اس نے کہا شاید راست بازوں کے ستانے والے بہت سے ہیں۔ اسے اس جگہ سے اٹھنا تھا اور اپنے دن سے بات کرنی شروع کرنی تھی، اس دن کو حکم دینا شروع کرنا تھا، اپنے دن کی پیشین گوئی کرنا شروع کرنی تھی۔ جب خدا آپ کے دن کو حکم دے اور آپ اپنی صبح کو حکم دیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے لفظوں میں، اگر تم منہ نہیں کھولو گے اور شیر کی طرح دھاڑو گے نہیں، اگر منہ نہیں کھولو گے اور شیر کی طرح دھاڑو گے نہیں تو آج کا دن تمہارے خلاف گرجے گا۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ دن کیا کرے گا؟ آپ کے خلاف گرجے گا۔ ایک کہاوت ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے افریقی کہاوت کہتے ہیں یا تمام افریقی تعلیم۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون پڑھا رہا ہے، لیکن یہ جنگل میں کہا جاتا ہے۔ جب جنگل میں دن ڈھل رہا ہے تو جنگل میں ایک طرف شیر جاگ رہا ہے اور ہرنی بھی جاگ رہی ہے۔ وہ دونوں ایک ہی چیز کی تلاش میں جاگ رہے ہیں۔ انہیں پانی کی ضرورت ہے، انہیں کھانے کی ضرورت ہے۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ لیکن جیسے ہی ہرنی جاگ رہی ہے، وہ جانتی ہے کہ میں جاگ رہی ہوں، لیکن اس جنگل میں کہیں بھوکا شیر بھی جاگ رہا ہے۔ وہ پیارا دکھنے کے لیے نہیں جاگ رہا، اس کے پاس انگڑائیاں لینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، اس کے پاس جمائی لینے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ ہرنی کی آنکھ کھلتے ہی اسے جاگنا ہے، اسے اب اٹھنا ہے اور بھاگنا ہے، اسے دعا کے لیے جاگنا ہے، اسے جاگنا ہے۔ شیر کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں پانی تک پہنچنا ہے۔ کیا میں آج کسی سے بات کر رہی ہوں؟
क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? वो जानता है कि उसे इक़्तिदार में आना है, वो जानता है कि उसे इख्तियार में उठना है, वो जानता है कि उसे दौड़ना है, उसे उस पानी के नाले के पास जाना है। इसीलिए बाइबल कहती है, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह मेरे खुदावंद के लिए तरसती है। मेरी रूह खुदावंद के लिए तरसती है, मेरी जान तेरे लिए तरसती है, मेरा जिस्म तेरे लिए तरसता है। खुश्क और बंजर जमीन में जहाँ पानी है, उस ताकत और तेरे जलाल को देखने, जैसा कि मैंने मकदस में देखा। जंगल के कानून में तो शेर उठता है, हिरनी उठती है। दूसरा कानून जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जंगल में उनकी पहले ही इज्जत है। आमीन। लेकिन या तो खाओ या खुद खाना बन जाओ। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? या तो खाओ या खुद खाना बन जाओ। आप इसलिए नहीं उठते कि आप कहें कि मैं खूबसूरत हूँ। कोई शेर मुझे रोक नहीं सकता, कोई शेर मुझे रोक नहीं सकता। उसने कहा, क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? आप नहीं कह सकते कि मेरे पोल्का डॉट्स देखो, देखो मेरा नाम बैम्बी है, मेरा नाम बैम्बी है। और जो शेर देख रहा है वो मेमने की चाप है, जो कुछ देख रहा है वो सूअर का गोश्त है। वो कहता है, मैं आज जो खाने जा रहा हूँ, खुदा के लोगों, मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इस दिन के आगाज में उठते हैं, जैसा कि आप इस दिन की सुबह उठते हैं, आप इस दिन की किसी कमजोर जगह में नहीं उठ सकते। आप खुद को बेचारा कहकर नहीं उठ सकते। नहीं, आपको ताकत के साथ अपना मुंह खोलना होगा, आपको इख्तियार के साथ अपना मुंह खोलना होगा, आपको जानबूझकर मुंह खोलना पड़ेगा। आपको तकरीबन पागलपन के साथ बहुत दुआ करनी है। कोई दुआ करे। आए, हम अपना मुंह खोलें। कभी तालियां बजाकर दुआ करनी पड़ती है, कभी जंग करके दुआ मांगनी पड़ती है, कभी गर्ज के साथ दुआ मांगनी पड़ती है। आए मेरे साथ दुआ करें। दुआ के मैदान में दाखिल हो, ताकत के मैदान में दाखिल हो, इख्तियार के साथ दुआ करें, गलबे के साथ दुआ करें। मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, मैं अपना दिन शुरू करता हूँ, मैं अपना दिन शुरू करता हूँ। मैं अपने दिन में दाखिल होता हूँ, मैं अपने दिन में दाखिल होता हूँ, मैं अपने दिन में दाखिल होता हूँ। आए मेरे साथ दुआ करें, ताकत के साथ दुआ करें, इख्तियार के साथ दुआ करें, गलबे के साथ दुआ करें, एक ख्वाहिशमंदाना औरत और मर्द की तरह दुआ करें। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम की ताकत में आपको शुरू करना चाहिए। और आपको अपना दिन ऐसे शुरू करना चाहिए। क्या आपने सुबह को हुक्म दिया है? जब से आपका दिन शुरू हुआ है, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक कि आप ताकत के साथ दिन में दाखिल ना हो। मैं अपने आप को दोहराना चाहती हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी जिंदगी में या आपके हालात में तब्दील होने वाली है। मैं आपको बता रही हूँ, आपको दिन में दाखिल होना पड़ेगा। आपको दिन शुरू करना है, आपको दिन ऐसे शुरू करना पड़ेगा। क्या आपको समझ आ रही है? क्योंकि आपको क्या करना है? दिन में दाखिल होना है। मुझे सुबह के वक्त ये करना चाहिए। अगर मैं दिन का शुरू ऐसे ना करूं, तो दिन मुझे तोड़ देगा। ये सूरज के तलू होने से लेकर गरूब आफताब तक एक वादा कायम करता है। ये दिन आपको दिया गया था, तो जो कुछ भी रात में हुआ, आप ताकत के साथ दिन में दाखिल होकर रात में जो कुछ हुआ, उसकी ताकतों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो आप उसे हुक्म देते हैं, आप उसमें कमजोर ना बने, आप डर कर उसमें मत दाखिल हो, आप उसमें उदासी के साथ ना आए। क्या आप लोग मुझे ऊंची आवाज में सुन रहे हैं? आप ताकत के साथ दिन में आते हैं, आप गलबे के साथ दिन में दाखिल होते हैं, आप इख्तियार के साथ दिन में दाखिल होते हैं, आप जानबूझकर दिन में दाखिल होते हैं। खुदा की तारीफ हो। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? तो मैंने आपसे पहले भी कहा, खुदा की तारीफ हो। खुदा आपको बढ़ाना चाहता है। तो हर कोई ताकतवर बनना चाहता है, हर कोई इस जगह पर रहना चाहता है जहां आप कहते हैं कि मैं खुदा को सुन रहा हूं और खुदा मेरी सुन रहा है, खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। खुदा की तारीफ हो। लेकिन अगर खुदा आपको सुनने वाला है और आप खुदा को सुनने जा रहे हैं, तो खुदा के लिए आपकी सलाहियत में इजाफा होना चाहिए। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ?
کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے آپ کو اپنی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا، کیونکہ آپ صرف اپنی صلاحیت کے مطابق ہی اس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وافر صلاحیت نہیں ہے تو آپ زیادہ حجم وصول نہیں کر پائیں گے، آپ خدا سے زیادہ وصول نہیں کر سکیں گے۔ تو لوگ ہار مان رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، لوگ ناکام ہو رہے ہیں، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، کیونکہ ان کی خدا کو لینے یا اس کی میزبانی کرنے کی صلاحیت کم ہے۔ کیا میں آج کسی سے بات کر رہی ہوں؟ خدا کی میزبانی کرنے کی صلاحیت۔ آپ وہ بن جاتے ہیں جسے میزبان کہتے ہیں، جو بھی آپ اپنے آپ کو بلانا چاہیں۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہم نے اسٹیج پلے پر ایک بار ایک ڈرامہ کیا جس کا نام ہوسٹس ود دا موسٹس رکھا۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ تو سب سے زیادہ میزبان کون ہے؟ جس کے پاس یہ سب پہننے کی، خدا کی مقداریں اٹھانے کی روحانی صلاحیتیں ہیں۔ میں آج یہ آپ کو بتانے آئی ہوں، میں آپ کو جھنجھوڑ کر آپ کے حال سے باہر نکالنے آئی ہوں۔ میں کیا کرنے آئی ہوں؟ آپ کو جھنجھوڑنے۔ اسے بول چال کہتے ہیں۔ یہ وہی لفظ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں، اور ہم آپ کو کھینچنے کا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جھنجھوڑنے آئے ہیں۔ ہم آپ کو پکڑنے آئے ہیں۔ کوئی کہے مجھے نکال دو، مجھے نکال دو، مجھے نکال دو، مجھے باہر نکالو۔ خادمہ مجھے نکالیں، روح القدس مجھے باہر نکال، مجھے میری خشک حالی سے نکال۔ شفایت کی ضرورت ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعا کے بغیر آپ دکھی ہوں گے، دعا کے بغیر آپ ناکام ہو جائیں گے، دعا کے بغیر زندگی تباہ ہو جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ اگر آپ کنیریا کی طرح گا سکتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے تحفے کچھ بھی ہوں۔ اگر آپ کے پاس دعا کی قربان کا نہیں ہے، اگر آپ کے پاس دعا کی قربان کا نہیں ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے تحفے مختصر مدت کے ہیں۔ آپ سب جو دعائیا فوج میں شامل ہیں، خدا آج آپ کو خوش رکھے۔ آپ سب جو دعائیا فوج میں شامل ہیں، خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ ہم نئے دن پر خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک نیا دن طلوع ہوا، ایک نیا دن آیا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ کل ہمیشہ کے لیے چلا گیا، خدا کی تعریف ہو، آمین۔ کل شاید آئے بھی نہ، لہٰذا آپ کو ہمیشہ وہ دعا مانگنی ہوگی جسے میں جان بوجھ کر دعا کرنا کہتی ہوں۔ پہلا تھسلنیکیوں 5 باب، اس نے کہا کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ دعا کرنے سے مت رکو۔ آپ کھانے سے روک سکتے ہیں، آپ سونے سے روک سکتے ہیں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے آپ روک سکتے ہیں، لیکن آپ جو کچھ بھی کریں کبھی بھی دعا سے باز نہ آئیں۔ اپنی دعا کو جان بوجھ کر کرتے رہیں، اپنی دعا کو آخری کنارے پر رکھیں، دعا کریں، خدا کی تعریف کریں۔ آپ کا منہ دعا سے بھر جائے، آپ کا رقص دعا سے بھر جائے، آپ کی زندگی دعاؤں سے بھر جائے، آپ کا کاروبار دعاؤں سے بھر جائے، آپ کا جبڑا دعا سے بھر جائے، آپ کا گھر بھر جائے۔ کوئی کہے کہ مجھے دن میں داخل ہونا ہے، مجھے دن میں داخل ہونا ہے، مجھے دن میں داخل ہونا ہے، مجھے اپنے دن کو حکم دینا ہوگا، میرے دن میں طاقت ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی قربانگاہ کو بلند کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں، شیر اور ہرنی کو یاد رکھیں۔ شیر جاگ رہا ہے، ہرنی جاگ رہی ہے، اور وہ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ آج کوئی کھایا جائے گا، تو وہ دونوں جاگ بھی رہے ہیں اور دوڑ بھی رہے ہیں، یہاں تک کہ روح کے طور پر آپ ایک خدا کی بندی اور بندے کے طور پر آپ کہیں بھی ہیں۔ جیسا کہ آپ ابھی میری دعا کی قربانگاہ میں آ رہے ہیں، میں نے آج صبح اپنی قربانگاہ کھول دی ہے۔ میں آپ کو اپنے چیمبرز میں مدعو کرتی ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آپ جس شہر میں بھی ہیں، آپ اسے وہیں لکھیں یا اپنا خاندانی نام لکھیں اور کہیں، آج میں قربان گاہ پر ہوں، میں جانسن کی نمائندگی کر رہی ہوں، میں جانسن کی نمائندگی کر رہی ہوں، میں ٹیلرز کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ آپ کے خاندان کا کوئی بھی نام ہو، آپ جلدی سے اسے چٹ پر لکھ دیں۔ خدا کی تعریف کریں۔ دعائیا فوج، ہم آپ سے رابطہ منقطع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، لیکن آپ سب وہاں سے سوشل میڈیا پر جا سکتے ہیں۔ جلدی سے سوشل میڈیا پر جائیں، کیونکہ میں آپ سے جڑنا چاہتی ہوں۔ میں آج آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی خشک سالی کا موسم ختم ہو گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی خشک سالی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
जल्दी 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 आप में से जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, खुदा की तारीफ हो। हम जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं, खुदा की तारीफ हो, आमीन। ये यूट्यूब है, खुदा की तारीफ हो, आमीन। जल्दी से इस प्लेटफॉर्म पर जाएं, मेरे साथ शामिल हो जाएं। ये मैटी नॉटेज टीवी है, अभी इस पर क्लिक करें, खुदा की तारीफ हो, और टाइप करें कि मेरा खुश्क साली का दिन खत्म हो गया है, मेरा रूहानी कहत खत्म हो गया है, मेरा रूहानी कहत का दिन खत्म हो गया है। आपके रूहानी कहत के दिन खत्म हो गए हैं, और जब वो रूहानी कहत के दिन खत्म हो जाएंगे, आपको अब खुदा और खुदा की चीजों में एक बड़े दर्जे या बड़े जहद की आरज़ू करना शुरू करनी होगी। जैसा कि आप इसे आज अपनी चैट में टाइप कर रहे हैं, खुदा की तारीफ हो। जब आप टाइप कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हैं? खुदा की तारीफ हो। आप अपने दिन को हुक्म दे रहे हैं, आप कलाम डाल रहे हैं। खुदा की तारीफ हो, आमीन। आज आप कह रहे हैं, मैं अपनी कुर्बानगाह बढ़ा रही हूँ, मैं अपने खानदान की कुर्बानगाह को बढ़ा रही हूँ। याद रखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो उनकी कुर्बानगाह में दाखिल हो रहे हैं, वो तेरा नाम अपनी कुर्बानगाह पर डालेंगे। लेकिन जैसा कि आप इस इंतहाई दुआ और आग की कुर्बानगाह को बुलंद करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अब कुर्बानगाह बमुकाबला कुर्बानगाह है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो आज अपनी शरीर कुर्बानगाह पर आपके बारे में क्या कहेंगे। कोई कहे ऐसा नहीं होगा, कोई कहे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। यीशु ने इसे इस तरह रखा, यीशु ने उसे इस तरह रखा। उसने कहा, दोज़ख के दरवाजे गालिब ना आएंगे। दोज़ख के दरवाजे क्या करेंगे? मेरे दर्जे के खिलाफ गालिब नहीं, आपके खिलाफ। तो मुझे ये बताने की जरूरत है कि ये दरवाजे हमेशा गालिब आने के मंसूबे के साथ जागते हैं। बराए करम, मुझे सिर्फ कुछ लोगों की जरूरत है जो समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो यीशु ने कहा कि दोज़ख के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आ सकेंगे। आप जब तक आपकी कुर्बानगाह को बुलंद और ऊपर उठाया जाता है और आप वो बन जाते हैं जिसे खुदा का मेजबान कहा जाता है, दोज़ख के दरवाजे तुम पर गालिब ना आ सकेंगे। दोज़ख के दरवाजे आपके खिलाफ जीत नहीं सकेंगे। दोज़ख के दरवाजे आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कुर्बानगाह उठाई है। मैंने अपनी कुर्बानगाह को उठाया है। मेरी कुर्बानगाह ने कहा, ताकतवर कुर्बानगाह। अब मैं इस कुर्बानगाह में खुदा की मेजबानी कैसे करूं? मैं अब एक मुकद्दस जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं अब एक मुकद्दस जिंदगी गुजार रही हूँ। खुदा की तारीफ हो, मैं अब एक मुकद्दस बर्तन हूँ। मैं सिर्फ अब, तब और फिर खुदा के लिए जीना नहीं चाहती, मैं हमेशा खुदा के लिए जीना चाहती हूँ। तो मेरी जिंदगी एक मुकद्दस जिंदगी है। मेरी जिंदगी खुदा के लिए वक्फ है। मैं खुदा की मेजबानी करना चाहती हूँ। मैं खुदा चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो। दाऊद ने कहा, मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। तो आपकी मदद कहाँ से आती है? आपकी मदद खुदा की तरफ से आती है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो आपके पाँव को ठेस ना लगने देगा। जो इसराइल की हिफाजत करता है, वो ना ऊँघता है न सोता है। तो आपके सोने का वक्त खत्म हो गया है। आप जागते हुए दिन में दाखिल होते हैं। आप ताकत के साथ दिन में दाखिल होते हैं। आप इख्तियार के साथ दिन में दाखिल होते हैं। आप समझ के साथ दिन में दाखिल होते हैं। आज मेरा दिन है, ये मेरा दिन है। आज का दिन क्या है? मेरा दिन। आज का दिन मेरा है। जैसा कि मैं इस दिन में दाखिल हुई हूँ, मैं ताकत के दिन में दाखिल हुई, मैं गलबे के दिन में दाखिल हुई, मैं इख्तियार के दिन में दाखिल हुई, मैं सच्चाई के साथ दिन में दाखिल हुई, मैं दिन की जंग में दाखिल हुई। मैं जानती हूँ कि मैं जंग में हूँ, तो मैं आज ताकत से गरजती हुई इस दिन में दाखिल हुई हूँ। मैं आज किसी को निजात दिलाने आई हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि गुज़श्ता साल क्या था, ये एक नया साल है। मुझे परवाह नहीं कि कल रात क्या थी, ये नया महीना है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि गुज़श्ता हफ्ता कैसा था, ये एक नया हफ्ता था। सुने, मुझे इसकी भी परवाह नहीं कि कल क्या था। उसने कहा, अपने दिन को हुक्म दे, अपने दिन में दाखिल हो, ताकत के साथ अपने दिन में दाखिल हो, इख्तियार के साथ आज के दिन में दाखिल हो। मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ जो खुदा ने मुझसे कही थी। उसने कहा कि लोगों से कह कि जब वो दुआ करें तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे आप बहुत ज्यादा जमीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपको यकीन से जानना होगा कि आप जमीन हासिल कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा जैसे आपको कोई इलाका मिल रहा है या आपकी सलाहियत
ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप साबित कदमी से दुआ जारी रखते हैं, खुदा की हम्द करते हैं, अचानक आपको ये एहसास होने लगता है कि आपकी रूह में कुछ तब्दीली आई है। क्या तब्दीली डॉक्टर? आपकी सलाहियत बढ़ जाती है। खुदा की तारीफ हो। अब ये देखें, जब आप अपनी सलाहियत को बढ़ाना शुरू कर देंगे, खुदा की तारीफ करें, दुआ के जरिए, कलाम के जरिए आप खुदा की मेजबानी के लिए मजीद जगह बना रहे हैं, क्योंकि खुदा बहुत वसी है, खुदा बहुत बड़ा है, खुदा बड़ा है। ये तब होता है जब आपको एहसास होने लगता है कि आप पर कुछ है जिसे मसा कहा जाता है। मुझे यहाँ ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, मुझे सिर्फ कुछ लोगों की तलाश है। खुदा की तारीफ हो। मैं जूमर्स को भेजना चाहती हूँ, उन्हें यूट्यूब या किसी भी चीज़ पर भेजें और बस उन्हें वहाँ से हटा दें। खुदा की तारीफ हो। खुदा आपको बरकत दे। दुआ में कल आपसे मिलते हैं। खुदा की तारीफ हो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऊंची आवाज़ में और साफ सुने। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने। मैं आज एक मरकजी जगह पर सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। नेटवर्क से बाहर ना आए, नेटवर्क पर रहें। मैं आप में से कुछ के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं आपकी कुछ दुआओं की दरखास्त के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं आज आपकी कुछ ज़रूरियात के लिए दुआ करना चाहती हूँ। खुदा की तारीफ हो। कैनेडी जैसे आप आ रहे हैं, लाइनल जैसे आप आ रहे हैं, हतमी ताकत में आ जाएं। ये आपका दिन है और ये आपकी घड़ी है। रामोन आ जाए। जब आप जाग रहे हैं, सिर्फ एक चीज जो आपके लिए बदलने वाली है, आप अभी हार नहीं मान सकते। आप अभी हार नहीं मान सकते। आपको साबित कदम रहना होगा, गैर मनकूला। हालेलुया। दूसरा करंथियों 15वें बाब में, खुदा की तारीफ हो, दूसरे करंथियों में लिखा है साबित कदम रहो, गैर मनकूला। पहला करंथियों 15वें बाब, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफायदा नहीं है। तो आपका साबित कदम रहना दुआ करना है। ये वही है जो आपको खुदा की मेजबानी करने का सबब बनता है। क्या मैं आज किसी से बात कर रही हूँ? आपकी इस्तकामत, आपकी दुआ की फर्माबरदारी, ये ठीक है। आपकी दुआ की फर्माबरदारी सब ठीक है। खुदा अभी आपसे बात कर रहा है। खुदा की तारीफ हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शैतान ने आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश की होगी या आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश की होगी, लेकिन उसने कहा कि क्या? खुदा की तारीफ हो। आमीन। आपकी खुदा की रूह से फर्माबरदारी, आपकी ख्वाहिश, खुदा के लिए आपकी ख्वाहिश, खुदा के लिए आपकी ख्वाहिश, खुदा के लिए आपका दिल सिर्फ इसलिए है कि आप खुदा को चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उसे बेहतर जानना चाहते हैं। और खुदा की रूह देखेगी और कहेगी कि एक मिनट रुकें, वहाँ कोई नीचे है। खुदा की तारीफ हो। आमीन। और कैनकॉन में, साहिल में कोई, शिकागो में कोई, अलाबामा में कोई, खुदा की तारीफ हो, कोई है। हो मेरे खुदा, खुदावंद खुदा देख। शुमाली कैरोलिना में कोई है, अभी कोई ब्रामुदा में है और कॉल कर रहा है। वो आपकी मेजबानी करना चाहते हैं। यीशु, वो आपकी मेजबानी करना चाहते हैं। तो अब खुदा क्या करता है? वो खुद को, आमीन, वो खुद को दस्तयाब करता है, क्योंकि आप दस्तयाब हैं। ये आपकी तरफ आता है। ये वो जगह है जहां आप एक कशिश महसूस कर रहे हैं और खुदा की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आप एक कशिश महसूस कर रहे हैं और दुआ की तरफ खींचे जा रहे हैं। आप कशिश महसूस कर रहे हैं और कलाम को पढ़ने के लिए खींचे जा रहे हैं। आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं जो कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे खुश्क महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुश्की से गुजर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे खुदा को सुनने की ज़रूरत है। और जिस वजह से मैं लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा बता सकते हैं, जब खुदा आपको खींचता है, आपको बेचैनी का एहसास होने लगता है। आपको क्या होने लगता है? बेचैनी का एहसास होने लगता है। बाज़ औक़ात आपको भी उलझन महसूस होती है। आप महसूस करते हैं कि बाज़ औक़ात एक उलझन है। आप बेचैन महसूस करते हैं। आप बेचैन महसूस करते हैं। कोई जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आप बेचैनी महसूस करते हैं। आप उस पर हाथ नहीं डाल सकते। आप कहते हैं मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। आप लोगों को समझा भी नहीं सकते। आप ये भी नहीं बता सकते कि आप ऐसे क्यों नजर आते हैं। खुदा का रूह आपको छू रहा है और मेजबानी करने के लिए बुला रहा है। तो अब खुदा का रूह कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपकी फर्माबरदारी में कुछ करना चाहता हूँ। आमीन। तुम कुर्बान गा लाओ, तुम कुर्बान गा को बुलंद करो, तुम कुर्बान गा पर कुर्बानी चढ़ाओ। खुदा की तारीफ हो। आमीन। तारीफ की कुर्बानी, शुक्रगुजारी की कुर्बानी, एक कुर्बानी। क्या आप मुझे समझ रहे हैं?
जैसे ही आप उसकी इबादत करने लगेंगे, आप दुआ करने लगेंगे, आप खुद को महसूस करने लगेंगे। जो बोझ आप उठा रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि वो आपसे दूर होने लग गया है, क्योंकि अब खुदा की मौजूदगी इस जगह पर छाई हुई है और ये अब वहाँ आ रहा है जहाँ आप हैं। खुदा की तारीफ हो, हालेलुया। जैसे कि आप दिन में दाखिल हो रहे हैं, आपको भी जंग करनी होगी, क्योंकि वो रात से पहले के जालिम हैं। वो तारीकी की बुरी रूहें हैं, वो शरीर रूहें हैं जिन्होंने आपकी रूह के मैदान में दाखिल होने की कोशिश की होगी। इसलिए आप में से कुछ जागते हैं, आपको थकावट महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है जैसे आप ओलंपिक्स में टेफ्लॉन लेने के लिए भाग रहे थे, और आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सोए भी नहीं, क्योंकि रात के वक्त आपकी रूह सफर करती है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? आप खुदा के बच्चे के तौर पर रूह के दायरों में कभी सफर करेंगे। खास तौर पर आप में से वो, खुदा की तारीफ हो, जो अपने आप को शिफायत करने वाले या दुआ या जंगजू के तौर पर पाएंगे। इस रात आप बहुत से ख्वाब देख सकते हैं, बहुत से ख्वाब, कई मुलाकातें। कुछ मुकाबलों में आपको उनसे अपने रास्ते के लिए लड़ना पड़ेगा, इसलिए बाज़ औक़ात आप उठते हैं तो आपको थकावट का एहसास होता है। लेकिन अब वो क्या कह रहा है? कमजोरी के वक्त आपकी ताकत को नए सिरे से ताज़ा किया जाता है। मेरी ताकत कमजोरी में कामिल होती है, क्योंकि जब मैं कमजोर होती हूँ तो मजबूत होती हूँ। इसलिए उसने कहा कि साबित कदम रहो। मैं आज किसी की हौसला अफजाई करना चाहती हूँ। शैतान आपकी हौसला शिकनी करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि खुदा आपको भूल गया है और इस मसीहत का कोई मतलब नहीं है। मैं अभी पेशीन गोई करती हूँ, मैं पेशीन गोई करती हूँ कि आप इस गड्ढे से बाहर होंगे। आपकी खुश्की से बाहर होने की पेशीन गोई। कोई कहे, रूहुल कुद्स मुझे उठा, खुश्की से बाहर, मुझे उठा, खुश्क जगह से बाहर, मुझे एक ऊंचे मकाम पर ले जा, मुझे एक ऊंचे मकाम पर ले जा, मुझे बुलंदी पर ले जा। तो जब आप शिफायत और दुआ के दायरे में दाखिल होते हैं तो खुदा की रूह आपको उठाना शुरू कर देती है। खुदा की तारीफ हो, आमीन। दुआ सफर है। दुआ सिर्फ खुदा के साथ गुफ्तगू नहीं है, ये खुदा के साथ इश्तराक है, ये खुदा के साथ एक मुश्तरका इत्तेहाद है। दुआ, खुदा की तारीफ हो, जानबूझकर की जाती है। दुआ क्या? जानबूझकर की जाती है। ये खुदा के साथ राब्ता है। मैं जानबूझकर कर रही हूँ, मैं जानबूझकर कर रही हूँ। मैं दिखावे की दुआ नहीं करती, मैं अपनी दुआ के दायरे में दाखिल होती हूँ और मैं जानबूझकर करती हूँ। मैं क्या करती हूँ? जानबूझकर करती हूँ। और फिर ऐसे औकात होते हैं जब मैं दुआ करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को दुआ में खो देती हूँ, जैसा कि आप अपने आप को दुआ में खो देते हैं। मैं खुदा की मेज़बानी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपकी सलाहियत बढ़ाने की बात कर रही हूँ, मैं दुआओं के बारे में बात कर रही हूँ कि खुदा इस जगह पहुँच रहा है जहाँ ये आप और खुदा, खुदा और आप है। आप चाहते हैं कि वो कब्जा में आए। खुदा की तारीफ हो। मैं खुदा की इतनी भूखी हूँ कि मुझे इसकी परवाह नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ। मैं खुदा के लिए बहुत भूखी हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि मेरी आवाज़ कैसी है। आप कहते हैं कि ओह, आप ऊंची आवाज में बोल रही हैं। इतना बुलंद होने के लिए बहुत सुबह है। उसकी वजह यह है कि आप नहीं जानते कि आप किन शैतानों से लड़ रहे हैं। खुदा की तारीफ हो, आमीन। तो आप ताकत के साथ आते हैं, आप इख्तियार के साथ आते हैं। आप कहते हैं कि 1 मिनट रुकें, मुझे खुदा की जरूरत है, मैं खुदा के लिए बेचैन हूँ, मुझे उसकी बहुत जरूरत है। आपको सिर्फ खाने की भूख नहीं है। बहुत से मसीही जागते हैं तो उन्हें भूख होती है, और जब वो खा रहे होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। मुझे एक बड़ा बिग मैक चाहिए, मुझे मैक अटैक चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग जागते हैं? क्या ये सच है कि बहुत से लोग रात से पहले ही जागने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं? वो नाश्ते में क्या खाने जा रहे हैं? और आप में से ज्यादातर लोग जागते हैं और कहते हैं कि मैं पहले ही सुबह के लिए जानती हूँ, मैं पहले ही जानती हूँ कि मैं ड्राइव पर जा रही हूँ, मैं 5 नंबर मांगने जा रही हूँ, नंबर 6 के साथ। और फिर आप कहती हैं कि मैं बड़ा साइज चाहती हूँ, क्योंकि आप पहले ही जानती हैं कि मैं यही चाहती हूँ और यही नाश्ते में लेना चाहती हूँ। और जब वो नाश्ता कर रहे होते हैं तो वो दोपहर के खाने के बारे में सोच रहे होते हैं। वो पहले ही कैफेटेरिया को फोन करते हैं और कहते हैं, सुने, आज मुझे ऑक्सटेल चाहिए, मुझे बीन और चावल के साथ ऑक्सटेल चाहिए और मैं चाहती हूँ, खुदा की तारीफ हो, मैं बड़ा साइज चाहती हूँ। लोग अपने दोपहर के खाने का मंसूबा बनाना शुरू कर देते हैं। अभी सिर्फ सुबह ही हुई है, नाश्ता खत्म नहीं हुआ। वो मंसूबा बना रहे हैं कि मैं आज क्या लंच करना चाहती हूँ। रूहुल कुद्स ने कहा कि मैं आज सुबह आपको दुआ पर उकसाऊं। उसने मुझे आपको उकसाने के लिए भेजा है। उसने कहा कि लोगों से कहूँ, मेरे लिए जज्बा लेकर उठो, मेरे लिए भूख के साथ जागो। ये खुदा के लिए बहुत भूख रखने का वक्त है।
उसने कहा मुझे खुदा दे, मुझे तू दे दे, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। मैं किसी से बात कर रही हूँ। खुदा आपको मैडम कह रहा है, खुदा आपकी परेशानी को बुला रहा है। आपका मसला आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी परेशानी के पीछे कुछ है। एक बुरी रूह है, एक शैतान है, एक शैतान है, एक डायन, एक शैतानी ताकत है। आपको इस चीज को मुंतकिल करने की जरूरत है और उसको हिलाने का वाहिद रास्ता दुआ और शिफायत है। आप एक बार दुआ करके उसे नहीं छोड़ सकते। आप 2 बार दुआ करके फिर सो नहीं सकते। नहीं, उसने कहा बिला नागा दुआ करो। हिजकियेल कहता है, मैंने पहिए के बीच में एक पहिया देखा, मैंने पहिए के बीच में एक पहिया देखा। वो क्या देख रहा है? वो फरिश्ते को देख रहा है। वो मजबूत था, लेकिन वो हकीकत में क्या देख रहा था कि आपको दुआ करनी चाहिए। दुआ में एक और दुआ, दुआ के दरमियान में दुआ, दुआ के दरमियान में दुआ, और दुआ के मसाइल के दरमियान, जवाबात के दरमियान दुआ, हल के दरमियान दुआ। जी हाँ, अपने जवाबात के दरमियान दुआ, अपने हल के दरमियान दुआ। अपने दिन को हमेशा दुआ के साथ मिला कर रखें। दुआ चाहती है कि आप खुदा की मेजबानी करें। दुआ और शिफायत, शिफायत का मतलब है खला में खड़ा होना। इसका मतलब क्या है? मसला और हल के दरमियान खड़े होना। लिहाजा आपको सिफारशी बनने की जरूरत है, एक दुआ जंगजू। आपको कोई ऐसा शख्स बनने की जरूरत है जिसे बहुत ज्यादा दुआएं दी जाती हैं। जिन लोगों को ज्यादा दुआएं नहीं दी जाती वो आसानी से छोड़ देते हैं। प्लीज मत जाओ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आप मसीही हैं, लेकिन आप दिन में कितनी बार दुआ करते हैं? ये अफसोसनाक है कि गैर अक़वाम दिन में कई बार अपने खुदा को याद करती हैं। दिन में कम से कम 3 बार यहूदी। लेकिन मैं हमेशा ये सवाल पूछती हूँ कि मसीही दिन में कितनी बार दुआ करते हैं? खुदा की तारीफ हो। वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि वो किसी के लिए दुआ करने वाले हैं। मैं आपके लिए दुआ करने वाली हूँ, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। और मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, जब भी कोई मसीही आपको बताता है कि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, बराए करम इस हकीकत पर गौर करें कि उन्होंने अभी दुआ की है, उन्होंने अभी दुआ की है। मजीद दुआ का वक्त नहीं होगा, लेकिन खुदा आपको दुआ के लिए बुला रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें सयून कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ऊंचे मकाम पर बुला रहा हूँ, क्योंकि सयून के पहाड़ पर क्या होगा? नजात मिल जाएगी तकद्दुस के साथ, और याकूब का घर अपनी मलकियत पर कब्जा करेगा। 117 पर डायल करें, क्योंकि सयून के पहाड़ पर नजात मिल जाएगी और पाकीज़गी के साथ, और याकूब का घराना उनके माल का मालिक होगा। कुछ चीजें हैं मारिया, मेरी बात सुनो मारिया, मारिया, कुछ चीजें हैं जो आपसे चोरी हो रही हैं। ऐसी चीजें हैं जो आप में से बहुत से लोगों से छीनी जा रही हैं। खुदा की तारीफ हो। और आपको किसी चीज से, कुछ जिदोजहद और किसी हमले से निजात नहीं मिली, क्योंकि आपने अभी तक दुआ नहीं की। आप अभी तक सयून के पहाड़ पर नहीं आए। जब आप सुबह सवेरे इस तरह दुआ के लिए आते हैं तो आप कुर्बान गाह उठा रहे होते हैं। खुदा की तारीफ हो, आप खुदा के सामने कुर्बान गाह को उठा रहे होते हैं। और ये सयून के बारे में कहता है। इसी तरह सयून के पहाड़ पर निजात मिलेगी। निजात क्या है? ये सिर्फ बाहर 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 नहीं है। निजात ये है कि आपको जुल्म और बुरी रूहों के खौफ से आजाद किया जाए। निजात खुदा का रास्ता है, खुदा का तरीका है। आपको तारीकी की कुव्वतों से आजाद करने का खुदा का मकसद है। क्या मैं किसी से बात कर रही हूँ? यहाँ हर एक सिर्फ खास कर निजात नहीं हासिल करता, हर कोई थूक कर निजात नहीं हासिल करता, और हर कोई ऐसे नहीं। आप में से कुछ को समझ नहीं आता कि जब आप दुआ करना शुरू करते हैं और अपने कुर्बान का उठाते हैं, आपको निजात मिल जाती है।